اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکلا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام شاید بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جوفا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہراول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا تو وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت کے حامل ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس لیے مکہ سے بھاگ آئے ہیں کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے، اور میں آپ کی اطاعت قبول کرنے مدینہ جا رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہندہ، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔
वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया। उसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। उसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। उसने अपने आप से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ ही तो नहीं गई। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा की बू भी बदली बदली सी है। वो उन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। उसे अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे खानदान की मत पूछो अबू सुफियान। मुसलमानों के 10,000 प्यादों, घुड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का माहिदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर ये वक्त आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम के वक्त अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बगूला हो गए। कहने लगे, अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह आने को कहा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है। मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता रहा हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं शायद ये न मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला। अबू सुफियान अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहर भरी आवाज में कहा, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा करना चाहता है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है, ये मुल्तजी होके आया है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने बेख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अक्रिमा और सफ़वान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला आ रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उज़ा और हुबुल की कसम, मदीना वालों का लश्कर मिरुज़्ज़हर में पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय उसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर आन पहुंचा है और अबू सुफियान को उस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। अबू हुस्ना, एक मोअम्मर आदमी ने उससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं या तू झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हुस्ना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हुस्ना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंदा के कानों तक पहुंचा। वो आग बगूला होकर बाहर आई और उस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हुस्ना को घेर रखा था। उसने अबू हुस्ना का गिरबान पकड़ कर कहा, अबू हुस्ना, मेरी तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की प्यासी है, तो मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है?
क्या तू नहीं जानता कि जिस पर तू झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अबू हुस्ना ने कहा, अपनी तलवार घर से ले आओ खातून, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है। हिंद ने पूछा, और तू कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर आए हैं। अबू हुस्ना ने कहा, खुदा की कसम मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। अहले कुरैश अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेकर आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। खुदा की कसम मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे, वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। ओहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीर फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूँ। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार अक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बेकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हालात को देखो अक्रिमा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद रजी अल्लाह अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले हैं, तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि उस मुकद्दस चादर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफवान, मक्का के लोगों में अक्रिमा और सफवान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज न सुनाई दी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उनकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उनकी मूछें जो खासी बड़ी थी अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलीलो ख्वार कराने की बातें कर रहा है। मौरिख मगाजी और इब्न साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खामद के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जैसे बुत बन गए हों। अक्रिमा और सफवान उनके दरमियान आ गए। सफवान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद,
इसे जाने दे, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब अक्रमा और सफ़वान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफ़वान अपने घर गया। उसकी बीवी, जिसका नाम फातिमा था, खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद की बहन थी। वो भी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बातें सुन चुकी थी। क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? फातिमा ने सफ़वान से पूछा। अगर फर्मा बरदारी करता तो पूरे कबीले का वकार तबाह हो जाता। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? फातिमा ने पूछा। तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारी घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि यह है तुम्हारे खामद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया है? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि यह है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फातिमा ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफ़वान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फातिमा? नहीं, फातिमा ने कहा, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। मैं उसकी बहन और तुम्हारी बीवी हूँ। लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। ये कोई अजीब बात नहीं फातिमा, सफ़वान ने कहा। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। फातिमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लें, फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ, सफ़वान ने कहा। फिर मेरी एक बात मान लो, फातिमा ने कहा। खालिद के आमने सामने ना आना। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफ़वान। फिर अपने भाई से जाके कहो कि मक्का के करीब ना आए। सफ़वान ने कहा, वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फातिमा के आंसू सफ़वान के इरादों को जरा भी मुतज़लज़ल न कर सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इंतजाम किया। उन्होंने चंद एक आदमी मुख्तलिफ बहरूपों में मक्का के इर्द गिर्द छोड़ रखे थे। उनका काम ये था कि मक्का से कोई आदमी बाहर निकल कर कहीं जाता नजर आए तो उसे पकड़ लें। जासूसी का ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि कुरैश अपने दोस्त कबाइल को मदद के लिए न बुला सकें। दूसरे ही दिन 2 शुतर सवारों को पकड़ा गया जो आम से मुसाफिर मालूम होते थे। उन्हें मुसलमानों के पड़ाव में ले जाया गया। 1-2 धमकियों से डरकर उन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। उनमें से एक यहूदी था और दूसरा कबीला कुरैश का। वो मक्का से चंद मील दूर रहने वाले कबीले बनु बकर के यहाँ ये इत्तला लेकर जा रहे थे कि मुसलमान मेरुज़्ज़ोहर में पड़ाव किए हुए हैं। बनु बकर को ये भी पैगाम भेजा जा रहा था कि वो मुसलमानों पर शबखून मारें और 2 और कबीलों को भी अपने साथ मिला लें। पैगाम में ये भी था कि मुसलमान मक्का को मुहासरे में लें तो बनु बकर और दूसरे कबीले अकब से उन पर हमला कर दें। उनसे पूछा गया कि मक्का में लड़ाई की तैयारियां किस पैमाने पर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अबू सुफियान लड़ाई नहीं चाहता और मक्का वालों की अक्सरियत उसके साथ है। सिर्फ अक्रमा और सफ़वान लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। इन दोनों आदमियों को अबू सुफियान ने नहीं, अक्रमा और सफ़वान ने भेजा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फर्ज करके दाखिल हुआ जाए कि कुरैश शहर के दिफा में लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस जमाने में मक्का की तरफ 4 रास्ते जाते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों में से गुजरते थे। फौज के हर हिस्से को एक रास्ता दे दिया गया। उन्हें अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेशकदमी करनी थी। फौज के उन हिस्सों में एक की नफरी सबसे ज्यादा रखी गई। उसकी कमान अबू उबैदा को दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास थी, एक के कमांडर जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास थी।
मौरखों ने लिखा है कि इस स्कीम में गैर मामूली दानिश कारफरमा थी। 4 समतों से पेशकदमी का मकसद ये था कि मक्का के दिफाई दस्तों को 4 हिस्सों में बखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों की पेशकदमी को किसी 1 या 2 रास्तों पर रोक भी लें तो दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में न लड़ें तो वो किसी रास्ते से भाग भी न सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्कीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे, कुरैश दिफा में न लड़ें तो उन पर हाथ न उठाया जाए, अमन का जवाब पुरअमन तरीके से दिया जाए, अगर कहीं झड़प हो जाए तो जख्मियों को कत्ल न किया जाए बल्कि उनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए। लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद न किया जाए, न उसे कत्ल किया जाए और उसे जंगी कैदी भी न समझा जाए, और उनमें से कोई भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के 4 हिस्सों को पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया।